डैक्स का फेयर को खत्म करने वाले हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम बहुत बेसिक से डैक्स लिखने वाले हैं। पहले हम लोग ये समझेंगे डैक्स होता क्या है। ओके, आखिर ऐसा क्या है डैक्स में जो लोग आई हैव सीन मेनी ऑफ माय कलीग हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न पावर बीआई, but somehow they quit this video in middle of when they reach into the DAX, because what they feel to writing a DAX it's very hard. But don't worry, I'm going to cover from the beginning. Okay, I'll covering what is DAX, why we using a DAX, what is column, calculated column. Okay, and I'll write some DAX which are going to implement on table. Okay, so after writing the DAX, you can apply the meaningful visual. Okay, so Power BI doesn't mean like only applying some charts and visible and show them attractive parts. No, Power BI charts like going to tell you a story. Okay, behalf of the data. So let's start. What is DAX first? Okay, so why we use DAX? हम लोग DAX क्यों यूज करते हैं, आखिर क्या है DAX को यूज करने के रीजन में? तो जैसे इस वीडियो में हमने इस पेज पे देखा था कि जब हम भी DAX लिखते हैं ना, तो वहां से कुछ मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालते हैं। ठीक है, एक रो डेटा है, ये रो डेटा में जब हम डैक्स और कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कुछ मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालते हैं। बेसिकली इसीलिए हम लोग डैक्स को यूज करते हैं टू शो देम अ डायनेमिकली कैलकुलेशन। ओके, बिकॉज ऑफ दैट वी यूज डैक्स एंड मेजर। तो डैक्स दो टाइप का होता है। ओके, एक होता है कैलकुलेटेड कॉलम, एक होता है मेजर। ओके, सो लेट्स फर्स्ट लेट्स राइट अ डैक्स, वन सिंपल डैक्स, अ टोटल सम। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट वन डैक्स that is called total sums. So total sales. Let me deep dive you first in my data sets. So this is data set. Okay, here we have region, country, order, priority, type, and shipment date, unit sold, unit price, unit cost, total revenue, total cost, and profit. Okay. Now I'm going to write a simple DAX, and I'll going to what I'm going to cover the calculated column. I'll try to explain you a very layman way so you can understand. I believe I'm not. I believe, but depend on you how much how much you're going to spend a time in this video. Okay, so let's start. So total sales. I want to find the total sales in this data set. Okay, in this data sets, I want to find a total sales. Okay, according to region wise. So here the total sales is equal to, ठीक है, तो हम total sales निकालना चाहते हैं। total sales किस basis पे निकलता है? Unit price and quantity, right? Then we'll get a total sales. So we'll write here calculate. Guys, ये calculate बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कभी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। So focus on this upward is called calculate. So after writing calculate, it's showing a syntax expression plus filter. Okay. So जैसे मैंने आपको बताया था कि DAX क्या होता है? DAX क्या होता है? Data analysis expression. It means word itself defining the meanings. So analyze the data and कैसे एनालाइज डेटा करते हैं, उसका एक्सप्रेशन पे हम क्या एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या एग्रीगेशन करने वाले हैं, मतलब उसमें क्या कैलकुलेशन करने वाले हैं। ओके, तो एक्सप्रेशन में हम क्या निकालने वाले हैं? सम निकालने वाले हैं। सम किस टेबल कॉलम पे निकालने वाले हैं? ठीक है, दो कॉलम यूज करके, आइदर यूनिट प्राइस होना चाहिए और हमारा यूनिट टोटल क्वांटिटी होना चाहिए, एल्स वो दोनों पहले ऐड करके हमें टोटल सेल्स होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू फोकस बोथ ऑफ यू बोथ। ओके, मैं दोनों को देखने वाला हूँ, दोनों पे फोकस करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट राइट अ सिंपल वे, नहीं तो आप भाग जाओगे यार। तो चलो, तो writing as expression is sum because I want us total sales. Okay, so I'm writing a total sales here. After writing a sums, it will pop up, or else you just need to write a table name. Okay, this is sample sales record. This is the name of my table. Okay, then go to in your table and write the total sales. Okay, so in this table, in this data says total sales is not, I mean, a column, but total revenue is there. That is a total sales also. Okay, so just write total revenue. Okay, and hit the enter. Is pop up showing कि इसका नाम चेंज कर दो यार, ये बोल रहा है टोटल सेल्स कहीं पे। अच्छा, मैंने एक जनरेट करवाया था डमी करके। ओके, तो इसको मैं टोटल 1 कर देता हूँ, देन हिट। तो हम टोटल सेल्स निकाले क्यों है? करेक्ट, तो हम टोटल सेल्स रीजन वाइज देखना चाहते हैं। तो लेट मी insert one table. Okay, and then write the region. We'll put here region and then total sales what we have calculated just now. See how much is this, bro? तो मैंने क्या करा? टोटल सेल्स निकाला ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, तो ये मेरा टोटल सेल्स है रीजन वाइज। सो व्हाट इज शोइंग अ डैक्स? इट मींस शोइंग सम एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेशन ऑन अ टेबल, राइट? तो डैक्स हम लोग क्यों लिखते हैं, मेजर हम लोग क्यों लिखते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मेजर. So whenever we write the measure, it always react on table.
not in a model, not a space, not gonna take a space in model, not gonna take a space in memory. Okay, and it is very robust to perform our reports, to analyze our reports. तो हम लोग इसीलिए मेजर को ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि हमारा रिपोर्ट को कभी स्लो नहीं करता है, फास्ट करता है। परफॉर्मेंस एनालाइज मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कभी चार्ट विजुअल अप्लाई कर देते हैं और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड कॉलम यूज़ करते हैं, तो हमारा रिपोर्ट थोड़ा स्लो हो जाता है। बिकॉज ऑफ टू overcome that problem, we always write a measure instead of calculated column. Okay, तो मेजर बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं? टेबल के ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, वहां पे हम यूज़ करते हैं। And second, measure not gonna take a physical memory and not gonna implement on model also. Okay, but model अगर मैं बोल रहा हूँ it's not gonna take a memory, तो हम समझेंगे मैंने क्या करा है। टोटल सेल्स मैंने एक कॉलम क्रिएट करा है। तो लेट वेरीफाई कि ये लिटरली फिजिकल मेमोरी एलोकेट करता है या नहीं करता है। तो हम टेबल में चलते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट या टोटल प्रॉफिट, बट ये चीज यहाँ पे उठ के नहीं आ रहा है, ठीक है। बट जैसे ही हम इस टेबल में देखते हैं रिपोर्ट व्यू में, तो ये हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो यही तो मेजर का खासियत है ना कि वो फिजिकल मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, बट वो टेबल में कैलकुलेशन करके आपको देगा। सो बिकॉज ऑफ दैट वी यूज अ मेजर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम समझते हैं कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है। तो कैलकुलेटेड कॉलम हमेशा कैलकुलेशन करता है रो वाइज रो। ओके, एंड मोर ओवर it take a memory, physical memory, and create a new column. Okay, so in simple definition, when we do a calculate column, it allocate a memory, create a new column, and also add in data model. Okay, तो चलिए हम करके देखते हैं। ओके, तो हम जाते होम में, फिर यहाँ पे करते हैं न्यू कॉलम। जो मैंने डेफिनेशन बताया है उस पे ही हम खड़े रहेंगे, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमको उसका डेफिनेशन को लिख के बताएंगे, ठीक है। टोटल सेल्स टू, ठीक है। अभी हम कैलकुलेटेड कॉलम लिख रहे हैं, ठीक है, डैक्स में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें टोटल सेल्स निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्राइस एंड a quantity. So what is quantity here? The unit sold item. This is showing how much item has they have sold. Okay, so we use unit price or unit selling, okay, into unit sold, correct? Unit sold, then hit the enter. अभी मेरा नया कॉलम बन के आ गया जिसका नाम है टोटल सेल्स टू। Guys, do you think it's hard? No, right? Be spend your quality of time in this video. Definitely you'll be feel more what we called, you will be more conscious to learn a DAX rather than avoiding I mean avoiding the DAX parts, some calculation and all. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेटेड कॉलम जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें टोटल सेल्स निकाल के दे दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्राइस एंड यूनिट सोल्ड। सो दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड कॉलम। अब ये कैलकुलेटेड कॉलम मेमोरी तो ये ले रहा है, और दूसरा ये डेटा मॉडल में भी शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक नया कॉलम बन के आया होगा, कैलकुलेटेड कॉलम, टू सेल्स, राइट। बट ये वन सेल्स नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, करेक्ट। वन सेल्स दिख रहा है, सॉरी। तो वन सेल्स भी दिख रहा है, वो डेटा मॉडल में ऐड होता है बट फिजिकल मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, सॉरी गाइस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरा कुछ सीखते हैं, ठीक है। अब हम टोटल सेल्स निकाल लिए हैं, अब इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं यार, इट्स नॉट डिफाइनिंग द एक्यूरेट। टोटल सेल्स वन मैं कर देता हूँ, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू create a total sales of all the regions. Okay, अभी क्या है टोटल सेल्स? let me create one, add one slicer so you'll get a more idea on this slicer. Total sales on region, right? Region, okay। अभी मेरा जो टोटल सेल्स आया है, and also I'm going to take one card and here I'm putting total sales, total sales. Let me also do some formatting so it will easy to read. Okay, now I think good, we good. सो व्हाट हम, हाँ मैं क्या बोल रहा था कि अभी मेरा टोटल सेल्स है 93 मिलियंस। ओके, नियर बाय 93 मिलियंस। बट ये 93 मिलियंस जैसे हम एशिया में चेक करना चाहते हैं कि टोटल सेल्स क्या हुआ है, तो मेरा 15 मिलियंस हो जा रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओशियंस में हम चेक करना चाहते हैं तो 9 मिलियंस है, और इसमें 6 मिलियंस है। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ग्रांड टोटल सेल्स दे, ये पूरा एशिया का जो टोटल सेल्स है वो ला के दे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो गाइज, फिल्टर दो टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहले मेजर दो टाइप का होता है। अ, एक होता है इम्प्लिसिट मेजर, एक होता है एक्सप्लिसिट मेजर, ठीक है। तो इम्प्लिसिट मेजर जो ऑलरेडी नेचुरली कैलकुलेटेड है, ठीक है। और एक्सप्लिसिट जो हम ऊपर से एड ऑन्स करेंगे, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन और एड ऑन्स उस पे कर रहे हैं, इस पे जो भी कैलकुलेशन ऊपर से एड ऑन्स करेंगे और उस पे जो फिल्टर लगाएंगे उसको एक्सप्लिसिट बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी करके देख रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये टोटल सेल्स कर रहे हैं और ये रीजन्स में फिल्टर को रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग नेचुरल फिल्टर के बारे में बात कर रहे हैं, अब एक्सटर्नल फिल्टर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू मेजर्स, ओके, दैट इज कॉल्ड न्यू मेजर्स ग्रांड टोटल, टोटल ग्रांड टोटल रीजन वाइज, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट, ओके, सम ऑफ सेल्स रिकॉर्ड में मुझे टोटल सेल्स निकाल के दो, ओके, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, और मुझे क्या चाहिए, जो रीजन के अगेंस्ट में टोटल सोर्स हो, किसके अगेंस्ट में, और रीजन के अगेंस्ट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, और लगा रहा हूँ, और यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रीजन। अभी मैं इसको एंटर कर देता हूँ, हिट एंटर एंड देन सी द जादू। इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, और अभी मैं इस पे टोटल सेल्स डाल देता हूँ, ग्रांड टोटल सेल्स, ओके। Let me remove this one and then put here. See, this one dollar and this one. Okay. So what is this inside data? ये हमारा स्टोरी क्या है भाई, ये क्या बोल क्या रहा है? ठीक है। तो क्या बोल रहा है अभी मैं बताता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि जो टोटल रीजन है उसका सम ऑफ सेल्स इतना है, और ये क्या है, रीजन वाइज डिवाइडेड सम ऑफ सेल्स, इसमें इसका 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 इतना सेल्स है। अभी देखिए जादू कैसा होता है, अगर मैं एशिया को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है कि एशिया में 50 मिलियंस का सेल्स हुआ है, ठीक है। और टोटल रीजन में कितना सोल्ड सोल्ड हुआ है, 137 मिलियंस, ठीक है। अब इसको फर्दर और ब्रेक करते हैं हम, अभी हम कंट्री लेवल पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसको हम दे देते हैं, कॉपी करते हैं, फर्दर एक और हम ब्रेक करते हैं, इसको हम कंट्री लेवल पे ब्रेक करेंगे, ठीक है। अभी आएगा मजा। अभी क्या बोल रहा है, एशिया में, ओके, एशिया में 15 मिलियन सेल्स है, टोटल कितना है 137 मिलियंस। एशिया में मलेशिया या लाओस, लाओस में कितना सेल्स हुआ है वो मुझे बताओ। तो लाओस में, एशिया में लाओस में टोटल सेल्स हुआ है 339 के, ठीक है, में $3,39 इतना सेल्स हुआ है, ठीक है, किसमें, लॉस में। और कजाकिस्तान में हम देखते हैं तो 11 के सोल्ड हुआ है, और टोटल एशिया में, टोटल रीजन में कितना है, उसमें 19 है, ठीक है। तो जब भी हम पैन लेवल का फिल्टर यूज करते हैं ना, तभी हम ये यूज कहाँ करते हैं, ऑल क्या है, क्या कर रहा है, ये रीजन पे फिल्टर अप्लाई कर रहा है और टोटल सम्स का ऐड ऐड कर रहा है। तो हम जब भी हम रीजन वाइज या कंट्री वाइज टोटल सेल्स दिखाते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक उस कॉलम पे फिल्टर अप्लाई करते हैं। मतलब क्या कर रहा है ये फॉर्मूला बेसिकली क्या कर रहा है कि यहाँ पे जा रहा है रीजन्स, ये रीजन्स का टोटल सेल्स जो है ना, वो यहाँ पे टोटल सेल्स इसका क्या है वो निकाल के दे रहा है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे, ये रीजन का टोटल रेवेन्यू निकाल के दे रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, कहाँ गया यार, यहाँ। अभी आप क्या चाहते हैं कि आप यहाँ पे कंट्री को भी ला दो इसमें, ठीक है। अभी इट विल शो यू समथिंग, ठीक है। अभी आपको समझ में आया होगा शायद, आई होपिंग दैट। अभी यहाँ पे ग्रांड टोटल ला देते हैं, ठीक है। तो ग्रांड टोटल ये मेरा हो गया। अभी हम क्या चाहते हैं कि इसका परसेंटेज कितना है, रीजन वाइज कितना परसेंटेज है, टोटल सेल्स से मेरा टोटल रीजन सेल्स है, तो एशिया में इस कंट्री का कितना परसेंटेज सोल्ड हुआ है, उसको हम कैसे निकालेंगे डैक्स में, ये भी देखते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करके एक होता है फंक्शन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, ब्यूशन ऑफ सेल्स परसेंटेज, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड करके एक फंक्शन होता है, आई होप आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। तो ये क्या बोल रहा है, इसका सिंटेक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बेसिकली ये हम इसको न्यूमरेटर इसको कंसीडर करने वाले, इसको डिनोमिनेटर कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्रांड टोटल सेल्स, ठीक है। अब इसको कर देंगे इंटर।
अभी यहाँ पे इसको फैच करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे हटा देते हैं, इसको भी यहाँ पे ऐसे हटा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेते हैं। अभी हम क्या दिखाने वाले थे, ये है, किधर गया यार, क्या नाम लिखे थे, नाम कंट्रीब्यूशन, करेक्ट। अभी हम कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे फैच करते हैं टेबल पे, ठीक है। तो मुझे ये परसेंटेज बताएगा, क्या हो गया, किधर गया यार, कंट्रीब्यूशंस। अच्छा, इसमें टोटल सेल्स वन लिया हूँ यहाँ ना, टोटल सेल्स वन लिया हूँ, सॉरी। अभी आ गया, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे, इसको जीरो राउंड कर देते हैं और इसको कर देते हैं परसेंटेज। गाइज होप यू आर इंजॉइंग, ठीक है, आप बोर नहीं हो रहे होंगे, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या देखना चाहता हूँ यार, अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो यू हैव टू प्ले विद डेटा, ओके। आप ये नहीं बोल सकते हो यार कि ये मेरे से ना होगा या फिर बहुत बोरिंग है, देन आई एम सॉरी, यू स्विच इन अदर डिपार्टमेंट। तो अभी हम क्या देखना चाहते हैं कि एक कंट्री पे टोटल सेल्स, लेट्स सपोज एशिया में बांग्लादेश करके कंट्री है, उसका टोटल सेल्स ये है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 33% है, ठीक है। अभी उसी तरह हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, टोटल सेल्स कितना है, इतना है। टोटल ग्रांट सेल्स कितना है, इतना है। उसका टोटल कंट्रीब्यूशन सेल्स कितना है, 77%, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम कुछ और सीखते हैं, थोड़ा सा कुछ और फंक्शन सीखते हैं, जैसे टोटल हमने सीख लिया, काउंट करना भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो हम काउंट यूज करना चाहते हैं, वो क्या निकालना चाहते हैं काउंट यूज करके, कि हमारा टोटल ऑर्डर क्या है, ठीक है। ऑर्डर करके कुछ ऐसा कुछ है क्या, priority total ships order id, okay, order id is there. So how many orders we have placed in country wise, okay, we want to see that. तो कैसे करेंगे, again we write a measure and write total order, total order, total order। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, काउंट, काउंट, ठीक है। काउंट में हम क्या करना चाहते हैं, टोटल ऑर्डर करना चाहते हैं आईडी के बेसिस पे, ठीक है। आईडी इज यूनिक, सो इसके बेसिस पे मुझे यूनिक देगा। ये मेरा टोटल आ गया। अब यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, इस कार्ड को यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं टोटल काउंट, टोटल, किधर गया यार, दिख ही नहीं रहा, टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर मेरा 100 है, ठीक है। आप एशिया वाइज या फिर किस कंट्री ने कितना ऑर्डर दिया है वो भी देखना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो लेट्स पुट इन दिस टेबल, ओके, टोटल ऑर्डर यहाँ पे कर देते हैं। तो अभी हम एशिया में देखना है, देखते हैं एशिया में ये सारी कंट्री है, ठीक है। यार वंडरिंग यार, इंडिया नहीं दिख रहा है, ये कैसा डेटा है यार, फालतू सा डेटा है, इंडिया का नाम नहीं है, ठीक है। एशिया में इतने सारे कंट्री हैं, उसमें टोटल सेल्स ये है, टोटल ऑर्डर ये दो माने, म्यांमार का है, तुर्कमेनिस्तान का टू है, ब्यूरिन्स का वन है, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। टोटल सेल्स इतना है, टोटल ग्रांड सेल्स है, टोटल कंट्रीब्यूशन 31% है, 78% है, और टोटल एशिया में 11% का कंट्रीब्यूशन है, ओके। सो लेट्स सपोज आपका मैनेजर क्या चाहता है कि मुझे टोटल सेल्स दो ईयर वाइज, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा कि ओके, आई गिव यू टोटल सेल्स ईयर वाइज। तो मैं एक और टेबल लूंगा, ठीक है, एंड देन आई प्लेस कर्सर हियर and I'll minimize this one, okay. And yearly voice, I want to see the total sales, okay. So I'll put here order, remove this month, remove this, I want to see year voice, okay. And then I want to total sales placed in here. Where is gone man, okay। इसको थोड़ा मिनिमाइज मैं कर लेता हूँ यार। ओके, तो अभी मुझे ईयर वाइज इतना सेल्स कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। अभी मैं लेट्स सपोज कुछ ग्राफिक डालता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कितना, दिस इज मोर गुड, ओके, ओके। सो अभी मुझे टोटल सेल्स, यार इसमें बड़ा फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। अभी मैं फॉर्मेटिंग में नहीं जाता हूँ यार, आई डोंट वांट टू प्ले चार्ट राइट नाउ, आई प्ले द नेक्स्ट वीडियो। अभी मैं टेबल पे ही खुश हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा यार। तो ईयर वाइज टोटल सेल्स मेरा इतना है, एंड एक मैं ये पुट कर देता हूँ और इसमें ईयर डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ शेडिंग, क्या कर रहा हूँ यार, फिल्टर पैन,
ये मुझे नहीं चाहिए, हटाओ। फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। किधर चला गया यार, इसका पेन किधर चला गया यार। हाँ, रिमूव करो यार। ओके, अभी मैं टेबल लेता हूँ। टेबल मैं ले लिया हूँ, सॉरी। अभी मैं लेता हूँ स्लाइसर। स्लाइसर में पुट करता हूँ ईयर। वेयर इज दैट? ईयर ईयर ईयर, ऑर्डर डेट ऑर्डर डेट ऑर्डर डेट। और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ये बिना फॉर्मेट का मानेगा नहीं बंदा। डेटा फॉर्मेटिंग, ऑर्डर डेट, टाइटल्स में किधर यार? स्लाइसर, टिल्ट नो, बिटवीन नो, ड्रॉप डाउन, दैट इज मच बेटर। ओके, तो यार कुछ तो इसको मैं शो करना चाहता हूँ हायरार्की ईयर बेसिस पे। तो मैं 2010 का शो करता हूँ, तो कुछ इतना सेल्स हुआ है, 11 का इतना सेल्स हुआ है, 12 का इतना सेल्स हुआ है, 13 का इतना सेल्स हुआ है। ओके, सो बेसिकली मैं दिखाना चाहता था टोटल सेल्स। ओके, अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे टोटल सेल्स प्रीवियस ईयर का जितना सेल्स है वो ला करके दे, ठीक है? तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? प्रीवियस ईयर का सेल, करेंट ईयर का सेल, मंथ टू मंथ सेल, डेट टू डेट सेल, ये सब तो होता ही है ना। तो आज मैं सिर्फ एक सैंपल दिखाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में वो हम करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेजर, और यहाँ पे देखता हूँ प्रीवियस ईयर सेल, लास्ट ईयर सेल। ओके, लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर सेल्स, सिंपल। तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेट सम। अभी हम टोटल सेल्स निकालेंगे, ठीक है? टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, एंड एक फंक्शन होता है, ठीक है? सेम पीरियड लास्ट ईयर। अभी क्या, एक फंक्शन होता है, इसको नीचे लिखते हैं, कॉमा, सेम पीरियड लास्ट ईयर। ओके, सेम पीरियड लास्ट ईयर में हम डेट को डालेंगे, ठीक है? ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, शिप डेट है ये, ऑर्डर डेट ऑर्डर डेट ऑर्डर डेट, इसको कर देंगे ईयर वाइज, ठीक है? अब हम इंटर मार देंगे। अभी हम एक टेबल और